Hello students, welcome you all to our second session of our chapter number 13, that is magnetic effects of electric current. Students, in the previous session we discussed regarding magnetic field and magnetic field lines. We even saw the magnetic field produced by a current carrying conductor and right hand thumb rule. Okay students, so let us continue with this chapter with further more topics. Our today's first topic is magnetic field due to a current through a circular loop. Okay, first of all, what do you mean by a circular loop? We have so far observed the pattern of magnetic field lines produced by a current carrying straight wire. हमने जो पहले वाले एक्टिविटी में किया था प्रीवियस सेशन में, that how magnetic field lines are produced around a current carrying straight wire. Suppose this straight wire is bent in the form of a circular loop. उस straight wire के दोनों ends को आप bend कर दो in the form of a circular loop and a current is passed through it. Okay, how would the magnetic field lines look like? अभी ये circular loop बन गया तो इसका magnetic field lines कैसे होते होंगे? We know that the magnetic field produced by a current carrying conductor depends inversely on the distance from it. Similarly, at every point of a current carrying circular loop, the concentric circles representing the magnetic field around it would become larger and larger as we move away from the wire. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो सर्कुलर लूप के जो दो एंड्स थे उसको हमने कार्डबोर्ड के थ्रू अंदर कर दिया और उन दोनों एंड्स को बैटरी से जोड़ दिया. जैसे ही हम करंट पास करते हैं, एज सुन एज वी पास करंट, द सर्कुलर लूप्स आर फॉर्म्ड एट बोथ द पॉइंट्स वेयर द वायर इज एंटरिंग द कार्डबोर्ड. जिस दोनों जगह जहाँ पे वायर जो है कार्डबोर्ड के अंदर जा रहा है वहाँ पे देखो सर्कुलर लूप्स बन रहे हैं. एंड एज सुन एज द सर्कुलर लूप्स आर फॉर्म्ड, जितने सर्कुलर लूप्स पास में है वो एकदम पास में है. जैसे जैसे दूर जाते रहेंगे तो सर्कल्स का रेडियस क्या होता जा रहा है, बड़ा होते जा रहा है. Okay, by the time we reach at the center of the circular loop, the arcs of this big circle would appear as straight lines. दूर जाते 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 इतने बड़े बड़े आर्क बन जाते हैं कि एकदम स्ट्रेट लाइन की तरह दिखते हैं. So every point on the wire carrying current would give rise to the magnetic field appearing as straight line at the center of the loop. By applying the right hand rule, right hand thumb rule हमने जो किया था, it is easy to check that every section of the wire contributes to the magnetic field in the same direction within the loop. We know that the magnetic field produced by a current carrying wire at a given point depends directly on the current passing through it. Therefore, if there is a circular coil having n turns, ये तो एक टर्न वाला है जिसके कारण इतने सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हो रहे हैं. अगर इसमें n टर्न्स हो, n बार ये कॉइल अगर होगा, ओके, द फील्ड प्रोड्यूस्ड इज n टाइम्स लार्जर एज दैट प्रोड्यूस बाय अ सिंगल टर्न. इस एक टर्न से जितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है, अगर इसमें n टर्न्स होते तो n टाइम्स स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता. दिस इज बिकॉज द करंट इन ईच टर्न हैज द सेम डायरेक्शन एंड द फील्ड ड्यू टू ईच टर्न देन जस्ट एड्स अप. ओके, एक टर्न में जितना मैग्नेटिक फील्ड हुआ, अगर आप 2 टर्न्स करोगे तो डबल मैग्नेटिक फील्ड, 3 टर्न्स करोगे तो ट्रिपल. सो इन दिस वे इफ देर आर n टर्न्स देन द मैग्नेटिक फील्ड वुड बी n टाइम्स लार्जर, स्ट्रॉन्गर. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप. इसमें स्ट्रेट वायर को बेंड करके लूप के फॉर्म में दे दिया है. ओके, now let us discuss what do you mean by a solenoid. Okay, a solenoid is a circular coil of wire in shape of a cylinder. अब जस्ट एक वायर ले लो और इस वायर को ऐसे गोल गोल लपेटते जाओ एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में. ओके, दैट इज कॉल्ड अ सोलिनॉइड. कैन यू सी द लास्ट फिगर? ये लास्ट फिगर आपको सोलिनॉइड का शेप दिखा रहे हैं. यू कैन सी द वायर्स को कैसे हमने वो कर दिया, वुंड कर दिया, राउंड कर दिया है. तो ये जो सिलेंड्रिकल शेप बना है इसको हम क्या बोलते हैं, सोलिनॉइड. ओके, अब इसके दोनों एंड्स को अगर हम बैटरी से जोड़ दें, ओके, व्हेन करंट फ्लोज थ्रू अ सोलिनॉइड इट बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट. जैसे हम इसके दोनों एंड्स को बैटरी से कनेक्ट करके करंट पास करते हैं, एट दैट टाइम दिस सोलिनॉइड बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट. द एंड्स ऑफ द सोलिनॉइड बिहेव्स लाइक द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ऑफ अ मैग्नेट. ये जो सोलिनॉइड के जो एंड्स होंगे ना, वो दोनों नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरह बिहेव करते हैं. एंड द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ सोलिनॉइड इज सिमिलर टू दैट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ बार मैग्नेट. बार मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड कैसा था, एक बार रिपीट करें हम लोग, दैट द
field lines emerge from the north pole and enters from the south pole, and inside the solenoid it goes from south pole to north pole. Okay, the density of field lines is more at the poles, and at the middle it is very less. Okay, so the magnetic field is stronger at the poles compared to the outer side. Okay, the strength of the magnetic field depends upon the strength of the current and the number of turns of the coil. एक ही टर्न का कॉइल होगा तो कम मैग्नेटिक फील्ड होगा, ज़्यादा टर्न्स होंगे कॉइल में, जितने ज़्यादा टर्न्स होंगे उतना स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड होगा। सेम जितने ज़्यादा करंट होगा उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा। ओके, सो वंस अगेन व्हाट इज अ सोलेनॉइड? अ सोलेनॉइड इज अ सर्कुलर कॉइल ऑफ वायर इन शेप ऑफ अ सिलेंडर। अ कॉइल ऑफ मेनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। आप वायर किसका ले सकते हैं? कॉपर वायर wrapped closely in shape of a cylinder is called a solenoid. The pattern of the magnetic field lines around a current carrying solenoid we can see in the figure. magnetic field lines कैसे दिख रहे हैं आपको? Okay, compare this pattern of the magnetic field with the magnetic field around a bar magnet. बार मैग्नेट का और सोलेनॉइड के जो मैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं उनके फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी सेम होती है। In fact, one end of the solenoid behaves as a magnetic north pole while the other end behaves as a south pole. The field lines inside the solenoid are in the form of parallel straight lines. This indicates that the magnetic field is same at all the points inside the solenoid. That is, the field is uniform inside the solenoid. A strong magnetic field produced inside a solenoid can be used to magnetize a piece of मैग्नेटिक मटेरियल लाइक सॉफ्ट आयरन व्हेन प्लेस्ड इनसाइड द कॉइल। आप देख सकते हो पहला फिगर, आप देख सकते हो सोलेनॉइड क्या है, जब वायर पूरा वुंड किया हुआ सोलेनॉइड है और अंदर हम क्या करते हैं, एक सॉफ्ट आयरन रखते हैं, जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है ना, वो आयरन है। वो जैसे ही हम इसमें से करंट पास करेंगे सोलेनॉइड में से, तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा? मैग्नेटिक फील्ड। ओके, और उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये जो अंदर सॉफ्ट आयरन रखा है ना, वो टेम्परेरीली मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। सच मैग्नेट्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। जैसे आप करंट ऑफ कर देंगे तो फिर से वो नॉर्मल आयरन की तरह बिहेव करेगा। जैसे आप करंट ऑन करोगे, द मैग्नेटिक फील्ड विल बी प्रोड्यूस्ड इनसाइड द सोलेनॉइड ड्यू टू विच दैट आयरन विल टेम्परेरीली बिहेव लाइक अ मैग्नेट, एंड सच मैग्नेट्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। ओके स्टूडेंट्स, यू कैन सी दिस फिगर ऑफ अ सोलेनॉइड। ये खाली एक सोलेनॉइड है जिसमें खाली देखते हैं आप वायर पूरा वुंड किया हुआ है, एंड यू कैन सी द फील्ड लाइंस, दे आर इमर्जिंग फ्रॉम द नॉर्थ एंड गोइंग इनसाइड फ्रॉम द साउथ, और अंदर जो है साउथ से नॉर्थ तक जा रहे हैं। सो सर्कुलर लूप्स बनाए हुए हैं। ओके, मैग्नेटिक फील्ड थ्रू अ सोलेनॉइड। ओके, सी द इलेक्ट्रोमैग्नेट। ओके, दिस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड कैन बी यूज्ड टू मैग्नेटाइज अ पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल लाइक अ सॉफ्ट आयरन। आप देख सकते हैं सेकेंड फिगर, एक आयरन नेल है। ओके, उसको सर्किट से हमने कनेक्ट कर दिया है। जैसे आप करंट पास करेंगे तो वो जो सोलेनॉइड बना हुआ है उसके कारण आयरन नेल जो है टेम्परेरीली मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। सच अ मैग्नेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस डिस्कस अनदर टॉपिक, दैट इज फोर्स ऑन ए कंडक्टर कैरिंग करंट इन अ मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड मतलब क्या? मतलब ये कि आपके पास एक कंडक्टर है जिसमें करंट पास हो रहा है, और उसको हम लोग एक अलग सा बाहर से एक मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं, तो उस कंडक्टर के ऊपर कैसा फोर्स लगता है? ओके, ऑब्वियस सी बात है कि व्हेन द करंट इज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, इट इज प्रोड्यूसिंग इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि वी ऑल नो, हमने फर्स्ट सेशन में देख लिया है कि व्हेन करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अब करंट कैरिंग कंडक्टर का खुद का मैग्नेटिक फील्ड है और बाहर से भी हम एक मैग्नेटिक फील्ड दे रहे हैं, तो इसके कारण क्या होता है, व्हाट हैपेंस, अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन द कंडक्टर। एक फोर्स लगता है कंडक्टर के ऊपर, ड्यू टू विच इट शोज द डिफ्लेक्शन, द कंडक्टर शोज डिफ्लेक्शन। तो लेट अस सी दिस एक्टिविटी। ओके, AM ampere, okay, under Mary Ampere, okay, suggested that if a current carrying conductor produces a magnetic field and exerts a force on a magnet, then a magnet should also exert a force on a current carrying conductor. तो जिस तरह से करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेट के ऊपर फोर्स लगाता है, वैसे ही मैग्नेट जो है करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर भी फोर्स लगाता होगा।
For example, we have taken if an aluminium rod is suspended horizontally by a wire between the poles of a horseshoe magnet, okay, and the current is passed through the wire. तो we can see that एक एल्यूमिनियम रॉड है, उसको वायर से कनेक्ट किया गया है, वायर में से करंट पास हो रहा है, मतलब रॉड में से भी करंट पास होगा, और उसको किस में रखा हुआ है, एक मैग्नेट के इधर रखा हुआ है. मैग्नेट कौन से शेप में, हॉर्सशू शेप में. इफ द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज रिवर्स्ड, द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो रिवर्स्ड. मतलब जैसे ही हमने पहले एक बार करंट पास किया तो कंडक्टर के ऊपर क्या लगा, फोर्स लगा, तो कंडक्टर थोड़ा सा क्या हुआ, डिस्प्लेस हुआ, थोड़ा सा वो टिल्ट हुआ. बट जैसे हमने करंट का डायरेक्शन चेंज किया तो कंडक्टर ने भी दूसरे तरफ अभी डिस्प्लेसमेंट शो किया. सो इट शोज दैट इफ द डायरेक्शन ऑफ द करंट चेंजेस देन द फोर्स ऑन द कंडक्टर ऑल्सो चेंजेस. द फोर्स exerted is maximum if the conductor is perpendicular to the magnetic field. ओके, कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड अगर एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो मैक्सिमम फोर्स लगता है किस पे, कंडक्टर के ऊपर. ओके, तो टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ दिस कंडक्टर, कि कितना किस डायरेक्शन में फोर्स लगा. ओके, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द कंडक्टर वी हैव टू अप्लाई फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. व्हाट वी हैव टू अप्लाई, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. ये जो कंडक्टर के ऊपर फोर्स लग रहा है ना, उस फोर्स का डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में कंडक्टर मूव किया, वो डायरेक्शन जानना हो तो आपको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल देखना पड़ेगा. ओके, तो लेट अस सी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के लिए स्टूडेंट्स आपको लेफ्ट हैंड के 3 फिंगर्स यूज करने होंगे, थंब, देन पॉइंटर यानी फर्स्ट फिंगर एंड द मिडिल फिंगर. ओके, 4 फिंगर जो होता है अपना. ओके, ये 3 फिंगर्स यूज करने और तीनों फिंगर्स को परपेंडिकुलरली अरेंज करने का. सी द सेकेंड फिगर. सेकेंड फिगर आप देख सकते हो, थंब एकदम ऊपर की तरफ, पॉइंटर आपका 4 फिंगर सामने की तरफ, और ये जो मिडिल फिंगर है वो इस तरफ अपने तरफ. ओके, इस तरह से आपके तीनों फिंगर्स परपेंडिकुलर होने चाहिए. अगर आपने तीनों फिंगर्स, लेफ्ट हैंड के तीनों फिंगर्स परपेंडिकुलरली रखें, देन व्हाट हैपेंस, देन द 4 फिंगर, आपका जो 4 फिंगर है ना, इट शोज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. 4 फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द मिडिल फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ द करंट. ओके, आप देख सकते हो सेकेंड वाले फिगर में जो पिंक लाइन है दैट शोज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, जो ब्लूइश ग्रीन लाइन है इट शोज द डायरेक्शन ऑफ द करंट. देन द डायरेक्शन ऑफ द थंब, थंब का जो डायरेक्शन है जो ग्रीन लाइन से दिखा रहे, इट शोज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर. इस डायरेक्शन से कंडक्टर के ऊपर फोर्स लग रहा है तो कंडक्टर जो है उसी डायरेक्शन में आगे मूवमेंट शो करेगा, मोशन शो करेगा. ओके, तो लेट अस रीड दिस स्टेटमेंट. Why Fleming's left hand rule is used? To know the direction of force or the motion of a current carrying conductor in a magnetic field. It states that if we hold the thumb, forefinger and the middle finger of the left hand perpendicular to each other, तीनों फिंगर्स को परपेंडिकुलरली अरेंज करना है, such that the forefinger points in the direction of magnetic field, the middle finger points in the direction of current, then the thumb shows the direction of the force or the motion of the conductor. ओके स्टूडेंट्स, जो थंब का डायरेक्शन होगा वो उस फोर्स का डायरेक्शन होगा, वो उस मोशन का डायरेक्शन होगा जिस तरफ कंडक्टर मूव कर रहा है. ओके, सो दिस इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. ओके स्टूडेंट्स, so by this we end our today's session students. Today's session was also a deep session. बहुत ज़्यादा topics मतलब ज़्यादा तो किए नहीं हैं but we have to understand those topics. Okay students, we have discussed regarding the magnetic field due to a current through a circular loop. Then we have seen magnetic field due to a current in a solenoid. Solenoid क्या होता है and then electromagnet क्या होता है, we have seen that. Then we have seen that how force acts on a current carrying conductor in a magnetic field, and we have seen Fleming's left hand rule to know the direction of the force acting on that current carrying conductor placed in a magnetic field. Okay students, आपको सारे टॉपिक्स टेक्स्ट बुक में से रीड करने के हैं. We will meet in the next session. Till then, thank you students.